Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to another very important and interesting class of biology. What are the learning outcomes of today's lecture? We will study endocrine and exocrine system with the definition of hormones and some few examples of endocrine systems, including pituitary gland with anterior and posterior lobe, thyroid gland, parathyroid gland, and adrenal gland in detail. Now let's start with an definition of endocrine system. Endocrine system क्या है? These glands are ductless glands और उनको कौन सा मीडियम चाहिए for transport. They use bloodstream as a carrier to transfer the hormones to the target organs or tissue upon which they act. So, endocrine system they defined as the ductless glands which are directly entered into the bloodstream. Then blood carries the hormone to the target organ. So they are called the ductless glands. बहुत सी एक्टिविटीज है like growth, the reproduction, maintenance of glucose concentration in blood, reabsorption of water in kidney. They all are needed to be regulated and they are regulated by endocrine system. Endocrine system use their chemicals and these chemicals or these molecules are called hormones. So a hormone is a specific messenger molecules. They are produced and secreted by endocrine glands. अब ये hormones वो molecules हैं जैसे adrenal glands के कुछ हैं hormones, pituitary glands के कुछ hormones हैं, pineal gland, testicle and ovary and pancreas. They produce some hormones which control different body functions. Now why the hormones are so important? Because apart from all the functions like growth, reproduction, cell division, they also control metamorphosis. कुछ organisms आपने देखा होगा जैसे frog है या butterfly है और cockroaches हैं, they have larval stage के embryo change होता है larva into the pupa and pupa into the adult. So this form shape, this metamorphosis is actually under the control of hormones. कुछ एक्टिविटीज हैं कुछ इनवर्टिब्रेट्स में दे आर आल्सो रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स. हार्मोन्स आल्सो कंट्रोल द माइग्रेशन इन बर्ड्स के कब माइग्रेट करना है वेदर इन समर और इन विंटर. Hormones can even be identified in unicellular organisms like amoeba, paramecium, euglena. They also have some hormones for different for functioning. So now let's move on to the what are exocrine glands. Exocrine glands क्या है? एंडोक्राइन के कोई डक्ट्स नहीं है पर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैव डक्ट्स फॉर रिलीजिंग देयर सिक्रीशन. कौन कौन से हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था बाइल डक्ट या इंटेस्टाइनल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट के पेनक्रिया से प्रोड्यूस हो रहा है तो पेनक्रियाटिक डक्ट से जा रहा है. अगर लिवर से प्रोड्यूस हो रहा है तो बाइल डक्ट से जा रहा है. अगर इंटेस्टाइन से प्रोड्यूस हो रहा है तो इंटेस्टाइनल डक्ट से जा रहा है. सो दे कैन एंटर इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम. So digestive glands are mostly exocrine in nature. For example, skin glands are also exocrine. कुछ important endocrine glands को हम जिनको डिटेल में देखेंगे वो कौन कौन से हैं? pituitary gland, thyroid gland, parathyroid glands and adrenal glands in detail. Now let's start with the pituitary gland. Pituitary gland आप डायग्राम में देख रहे हैं. Pituitary gland is just a pea-shaped gland that is attached to the hypothalamus of brain. हेड रीजन में है ये pituitary gland. पर ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको इसके जो फंक्शनिंग है विच इज ऑफ टू टाइप्स के आइदर ये खुद कुछ ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है या ये इन्फ्लुएंस करता है कुछ और हार्मोन्स को कि ये वो रिलीज हों और फंक्शन फॉर्म करें. सो कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं लाइक ट्रॉफिक हार्मोन्स जिसे हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं ना विच इज actually influence with the secretion of endocrine glands. और कुछ ऐसे हैं which directly act on various tissues of the body. Two lobes हैं pituitary glands की कौन कौन सी हैं? Anterior lobe and posterior lobe. Now let's discuss anterior and posterior lobe separately. Anterior lobe is it also produces many hormones और इसका बहुत important hormone है सोमेटोट्रोफिन हार्मोन जिसे हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं
which actually promotes the growth of the body. अच्छा, अगर तो इस सोमैटोट्रोफिन हार्मोन की लेस प्रोडक्शन है तो लेस ग्रोथ होगी, और इस कंडीशन को हम कहते हैं ड्वार्फिज्म, जिसमें बहुत हाइट छोटी रह जाती है, जैसे 2 फीट 3 फीट। और कभी ऐसा होता है इफ दिस हार्मोन इज एक्सेसिवली प्रोड्यूस, यानी इसकी ओवर प्रोडक्शन हो, बहुत लंबे लंबे ऑर्गेनिजम्स होते हैं या ह्यूमन बींग्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं जाइजेंटिज्म, जिसमें बहुत टॉल और ओवरवेट ह्यूमन बींग्स हो। इफ सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, अगर तो ये ग्रोथ एज यानी बिफोर 18 है, बिफोर 17 है, तो ये दो कंडीशंस करते हैं, जिसे हम कहते हैं ड्वार्फिज्म एंड जाइजेंटिज्म। लेकिन आफ्टर ग्रोइंग एज, समटाइम कुछ लोगों को आपने देखा होगा ना कि उनकी कुछ बॉडी एक्सट्रीमिटीज लाइक हैंड, लाइक फीट, लाइक जॉ बोन्स, they become so large. And why they have so? Because of the overproduction of somatotrophic hormone after growing age. ठीक है। और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, एक्रोमेगैली, जिसमें हाथों हाथ लंबे लंबे होते हैं, या आपकी बॉडी साइज के मुताबिक पाँव बहुत लंबे होते हैं, बॉडी इतनी नहीं होती, बॉडी नॉर्मल होती है, हाथ या पाँव या जॉ बोन्स दे आर टू लार्ज। और ये क्या होता है, थोड़ी सी सिर्फ एंटीरियर लोब का जो सोमैटोट्रोफिक हार्मोन है, इसकी कुछ प्रोडक्शन में मेल फंक्शनिंग हो जाती है। Now let's move on to the TSH, which is thyroid stimulating hormone. ये एक हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, which is released by anterior lobe of pituitary gland, and it stimulates thyroid gland to secrete its hormone. और thyroid gland का हार्मोन कौन सा है, thyroxine. The remaining hormones of anterior lobe influence reproductive organs, and they also control adrenal glands. आप पोस्टीरियर लोब को देख लेते हैं। पोस्टीरियर लोब के दो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, कौन कौन से, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, जिसे हम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, यानी कि जो यूरिन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, या यूरिन की अंडर प्रोडक्शन होती है या यूरिन की एक्सेसिव प्रोडक्शन होती है, और ये किन दो हार्मोन्स के अंदर होती है, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। एंड दीज हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस, जो कि ब्रेन का पार्ट है। जब आपने ब्रेन पढ़ा था ना, hypothalamus, thalamus and hypothalamus. So these hormones, these hormones are produced by hypothalamus. वेसोप्रेसिन को डिटेल में देख लेते हैं, which increase the rate of reabsorption of water from nephron. अच्छा, when we have low amount of water in body fluids, तो pituitary gland signals the vasopressin to release more, and more reabsorption of water occurs from nephron into the blood. इस तरह क्या होगा कि बॉडी में वाटर रिटेन रहता है और लेस यूरिन की प्रोडक्शन होती है। जिनका किडनी फेलियर होता है ना, जिसमें किडनी का कोई प्रॉब्लम होता है, आपने देखा होगा उनकी बॉडी में बहुत ब्लॉटिंग होती है, उनकी बॉडी में वाटर रिटेंशन होती है, स्वेलिंग हो जाती है। दिस इज ड्यू टू द लेस एब्जॉर्प्शन या लेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अच्छा, एक और कंडीशन है जिसे हम कहते हैं there is a decline secretion of hormone, and why it is so, when body fluids have more than normal water. अगर पिट्यूटरी ग्लैंड सही वर्क ना कर रहा हो, then this hormone in the required amount is not released, so less water is reabsorbed from nephron, and there is an excessive loss of water through urine, और इसे हम कहते हैं डायबिटीज इन स्पाइडर्स। आपने देखा होगा ना, कुछ डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिन्हें बहुत एक्सेसिव यूरिनेशन होती है, बहुत ज़्यादा यूरिन आता है। क्यों क्या आता है, क्योंकि वेसोप्रेसिन की रिलीज कम होती है, एंड दिस इज कॉल्ड, द सिचुएशन इज कॉल्ड डायबिटीज इन स्पाइडर। ऑक्सीटोसिन को देख लेते हैं। ऑक्सीटोसिन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो स्टिमुलेट करता है यूट्रस वॉल को ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द इजेक्शन ऑफ मिल्क, यानी कि जैसे चाइल्ड बर्थ हुआ बेबी के, जो ड्यूरिंग बर्थ प्रोसेस है, उससे ऑक्सीटोसिन उसको एक्टिवेट करता है, उसको बढ़ाता है, उसको स्टिमुलेट करता है। इसी तरह आफ्टर बर्थ जब मिल्क प्रोडक्शन को कौन से हार्मोन इंक्रीज करता है, ऑक्सीटोसिन। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड। दिस इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इन द नेक रीजन बिलो लेरिंग्स, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसे हम कहते हैं थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन किस चीज को कंट्रोल करता है, आयोडीन प्रोडक्शन को। अगर तो आयोडीन है, आयोडीन कम यूज हुआ है जो, तो इस हार्मोन की ज्यादा प्रोडक्शन
कंट्रोल नहीं हो सकती, which increases the which swells the thyroid gland, और ये thyroid gland thyroxine produce नहीं करता. So if the person lacks iodine in diet, thyroid gland cannot make its hormone, और इसे हम क्या कहते हैं, goiter. जिससे thyroid gland swell करता है, enlarge कर देता है. ठीक है, आपने नेक में देखा होगा ना, कई लोगों की नेक बहुत ज्यादा स्वेल की होती है, उसमें थायराइड ग्लैंड बहुत स्वेल किया होता है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं goiter. ड्यूरिंग मोस्टली हिली एरियाज में या माउंटेनियस रीजन में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनमें आयोडीन का इंटेक बहुत कम होता है. जब आयोडीन का इंटेक कम होगा, थायरॉक्सिन कम रिलीज होगा. जब थायरॉक्सिन कम रिलीज होगा तो ये थायरॉयड ग्लैंड स्वेल कर जाता है, एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड क्वाइटर. ठीक है. अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन कि हम देखते हैं अगर तो थायरॉक्सिन की या अंडर प्रोडक्शन है या ओवर प्रोडक्शन है. अगर तो इसकी ओवर प्रोडक्शन है तो हम कहते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म. अगर अंडर प्रोडक्शन है तो हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म. अच्छा, this thyroxine increases the breakdown of food and the release of energy in the body. It is also responsible for growth of the body. Hypo means less. So if there is an underproduction of thyroxine, it is characterized by low energy production, जिससे हार्ट बीट स्लो हो जाता है, एनर्जी बहुत लो हो जाती है. दिस सिचुएशन इज कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म. और अगर ये हाइपर थायरॉयडिज्म है, यानी कि थायरॉक्सिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहा है, इससे क्या होता है, हार्ट बीट बहुत तेज होती है, बहुत पसीना आता है, हाथ पाँव में बहुत कपकपाहट होती है, शिवरिंग जिसे हम कहते हैं, हाथ पाँव का कांपना. This is also controlled due to the overproduction of thyroxine. तो आप देखिए कितना इम्पोर्टेंट है थायरॉक्सिन का बैलेंस अमाउंट में रिलीज होना. ना हाइपोथायरॉयडिज्म हो, ना हाइपरथायरॉयडिज्म हो, बोथ आर द प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस. एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है थायराइड का, जिसे हम कहते हैं कैल्सिटोनिन, और वो कैल्शियम आयंस का इन ब्लड लेवल मेंटेन करता है. सो इट डिक्रीजेस द लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन ब्लड एंड आल्सो प्रमोट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द ब्लड इनटू द बोन. सो बोन में जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होती है, which is due to the hormone which is called calcitonin. देखते हैं पैराथायरॉयड को. पैराथायरॉयड, दीज ग्लैंड्स आर अटैच्ड टू द थायरॉयड ग्लैंड. ठीक है, इसलिए इसके नाम से पता चला ना, पैराथायरॉयड, थायरॉयड के साथ अटैच्ड है. These four glands, they are situated on the posterior side of thyroid gland. They produce hormone जिसे हम कहते हैं parathormone, which increases the level of calcium ions in the blood. When there is increased production of parathormone, more than normal calcium salts are reabsorbed from the bones into the blood. और अगर इस पैराथॉर्मोन की डेफिशिएंसी हो तो कैल्शियम लेवल फॉल करता है, which leads to the problem जिसे हम कहते हैं टेटनी. टेटनी का मतलब होता है हड्डियों का टेढ़ा हो जाना, which affects the functioning of muscles. ठीक है, लाइक आपने देखा पोलियो में क्या होता है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, सही चल नहीं सकते, हाइट रुक जाती है. So these are actually the problem related to the calcium level in the bones. एक और बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है एड्रीनल. रीनल का वर्ड यूज होता है किडनी के लिए. सो दीज ग्लैंड्स, दे आर एक्चुअली सिचुएटेड अबव द किडनी, अटैच्ड टू द किडनी. ठीक है, और इसके दो पार्ट्स हैं, एक को हम कहते हैं आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को मेडुला, जिसे एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला. This adrenal medulla actually secretes hormones which is called epinephrine or adrenaline. ये adrenaline क्या है? During stress condition, यानी कि if you have your exams tomorrow, so which hormone which makes yourself to overcome that emergency situation, that problematic situation is adrenaline. ठीक है, जो बॉडी के लेवल को मेंटेन करता है, और इसलिए हम एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन को हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं. कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, यू हैव टू ओवरकम दैट इमरजेंसी सिचुएशन with the help of the glands, with the help of the secretions, is the adrenaline. Hope you understand well about the endocrine system. Thank you very much for listening. If you have any question, please do ask me. I will try my level best to answer your questions. So get ready for another very interesting
lectures of biology, so stay in touch with the channel. So thank you very much and take care. Allah Hafiz.